Chalo bhai, let's start. We'll start with the first question. This is March 2022 का paper 2. Antibiotic resistance in bacteria is a global problem that has caused scientists to research into antibacterial substances other than antibiotics. Honey has properties that make it a good antibacterial substance. For example, honey contains hydrogen peroxide, which is known to kill bacteria. The most effective honey tested so far for antibacterial activity is Manuka honey. It contains less hydrogen peroxide than many other types of honey, but it does contain an antibacterial compound, methyl glyoxyl, which is MgO, which is not found in other types of honey. तो एग्जाम में बता रहे हैं भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबली लाइक और उसको टैकल करने के लिए वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर मोर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस. One antibacterial substance has been found in what? In a specific type of honey known as Manuka honey. और उस antibacterial substance का नाम क्या है? MgO है. ठीक है? The most effective honey मैं दुआ पढ़ रहा हूँ. The most effective honey tested so far for antibacterial activity is Manuka honey. It contains less hydrogen peroxide than many other types of honey, but it does contain an antibacterial compound, methyl glyoxyl, which is MgO, which is not found in other types of honey. हनी के अंदर ना इसके अलावा बहुत सारे हनीज में ये भी होता है हाइड्रोजन peroxide, which is also what bactericidal like, which can kill bacteria. A student decided to investigate the effect of two antibacterial substances on the bacterium Bacillus subtilis, which respires aerobically. तो एक aerobic bacterium है और वो दो सब्सटेंसेस जो टेस्ट की ना जिनका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट चेक करना है वो दो सब्सटेंसेस कौन सी हैं? नंबर 1 MgO in Manuka honey and number 2 an antibiotic solution used in cell cultures to prevent contamination. बस तुम इसका उसने एक्टिव कंपोनेंट नहीं बताया, बस आप कंपेयर कर रहे हैं एक MgO को with another what antibiotic solution like. So again, a student decided to investigate the effect of two antibacterial substances on the bacterium Bacillus subtilis, which respires what? Which respires aerobically. तो ये एक aerobic bacteria में याद रखना. The student wanted to find the lowest concentration of each antibacterial substance. So what did the student want to find out through this investigation? The lowest concentration of each antibacterial substance that would kill or inhibit the growth of this bacteria. ठीक है? Part A. The student used a broth culture for the investigation. A broth culture क्या है? To make a broth culture, a small quantity of the bacteria is added to a clear nutrient solution line. तो आपने छोटा सा अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया लिया, उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में आपने डिसॉल्व कर दिया, उसको यहाँ पे लिखा जा रहा है ब्रॉथ कल्चर. तो ब्रॉथ कल्चर में क्या है? न्यूट्रिएंट्स है and what and the small amount of bacterium that you add to those nutrients collectively उसको हम बोल रहे हैं broth culture. ठीक है? The student used a broth culture for the investigation. To make a broth culture, a small quantity of the bacteria is added to a clear nutrient solution. A fresh newly made broth culture of the bacterium is also clear. अब आपको एग्जाम में ये बता रहे कि जब आप बैक्टीरिया को डाल देते हो ना लाइक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, तो वो जो इनिशियल आपके पास सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? क्लियर होता है. क्या होता है वो? क्लियर होता है. Figure 1.1 is a diagram of a fresh broth culture of the bacteria. तो ये fresh broth culture है. यहाँ पे दिखा हुआ है cotton wool, which is acting as what? As a bung over here. आपके पास cotton wool यूज किया. Normally जो आप bung यूज करते हो ना, वो cotton wool नहीं होते. वो normally आप जो यूज करते हो वो किसके होते हैं? वो rubber bung होते हैं. Like they are non-porous. Like यहाँ पे cotton wool किसी purpose से यूज किया और वही आपसे वो पहले part में पूछेगा भी. A sterile cotton wool bung was used in the top of the flask containing the fresh broth culture of bacteria to protect the culture from contamination. Explain why it is better to use a sterile cotton wool bung in a flask containing broth culture of bacteria rather than using a sterile rubber bung. Like, तो क्या रीजन लोगे? क्या क्या एक्सप्लेन करोगे क्यों ये बेहतर है? बिकॉज जो बैक्टीरिया आप यूज कर रहे हो वो क्या है? एरोबिक. तो कॉटन वुल के थ्रू ऑक्सीजन आराम से जा सकता है. पोरस होता है ना कॉटन वुल. लाइक रबर बंग के थ्रू ऑक्सीजन नहीं जा सकता. लाइक तो दिस विल बी टू अलाउ व्हाट ऑक्सीजन टू इजीली पास इनटू द क्या नाम है फ्लास्क, ताकि बैक्टीरिया क्या कर सके? इजीली रेस्पायर कर सके एरोबिकली. लाइक तो आप क्या लिखोगे? टू इनेबल व्हाट? टू इनेबल ऑक्सीजन टू पास थ्रू for aerobic respiration. For aerobic respiration. ठीक है? जो आप बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो वो एरोबिक है ना यार, तो उसके लिए आप चाहोगे ऑक्सीजन का इजी पैसेज हो इनटू एंड आउट. तो उसके लिए आप जो है वो कॉटन वुल बंग यूज कर लोगे rather than what, जो कि पोरस होता है, rather than using a rubber bung. Go to the next page now.
Before comparing the two antibacterial substances, the student carried out a trial experiment. The student transferred a sample of fresh broth culture to a culture tube and incubated the tube at 25 degrees Celsius for 24 hours. तो एग्जाम को बता रहा है भाई कि आपने जो है वो 15 cm क्यूब और कल्चर ट्यूब के अंदर ब्रॉथ कल्चर डाला हुआ था, लाइक आपने उसको इंक्यूबेट किया 25 डिग्री सेल्सियस के लिए और फिर देखा फॉर अराउंड 24 आवर्स। उसके बाद देखा भाई वो जो पूरा ब्रॉथ कल्चर था ना वो क्या हो गया, क्लाउडी हो गया, टर्बिड हो गया। लाइक ये टर्बिड क्यों होगा? बिकॉज जाहिर सी बात है बैक्टीरिया इसमें क्या किया होगा, ग्रो किया होगा, लाइक, और आपके पास क्लाउडीनेस आ गई होगी। क्या आ गई होगी? क्लाउडनेस आ गई होगी। दिस इज वेरी सिमिलर टू, आपको प्रैक्टिकली इतना पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। जब आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है ना, यूरिन नॉर्मली जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, सी थ्रू, ठीक है। जब इन्फेक्शन होता है ना, बहुत सिवियर यूरिन इन्फेक्शन, तो यूरिन क्लाउडी हो जाता है। बैक्टीरिया जब नॉर्मली ग्रो करते हैं ना, तो जो क्लियर सोल्यूशन होते हैं ना, ये इनको क्या कर देते हैं, क्लाउडी कर देते हैं, और इनके थ्रू भी इजीली इतना आप देख नहीं कर सकते, सी थ्रू सोल्यूशन नहीं होते फिर। लाइक तो अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। बिफोर कंपेयरिंग द टू एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेज, द स्टूडेंट कैरिड आउट अ ट्रायल एक्सपेरिमेंट। The student transferred a sample of fresh broth culture to a culture tube and incubated the tube at 25 degrees Celsius for 24 hours. ये fresh broth culture में है क्या क्या? फ्रेश कल्चर में क्या क्या है? बाय द वे ब्रॉथ कल्चर में क्या क्या था? आपके पास न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था और स्मॉल सैंपल ऑफ क्या था, बैक्टीरिया। जब इसको इंक्यूबेट किया 25 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर 24 आवर्स, बैक्टीरिया फिर ग्रो करेंगे ना। अभी आपने एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन कुछ नहीं डाला इसमें, लाइक, तो जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे सॉल्यूशन में बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो। उस ग्रोथ की वजह से ये क्या हो जाती होगी, टर्बिडिटी हो जाती होगी। नीचे उसने लिखा है ये, the student decided that turbidity of the broth culture is a measure of what, of bacterial population growth और bacterial growth, यानी कि जितनी ज्यादा turbidity आएगी आप एक्सपेक्ट करो उतने ज्यादा बैक्टीरिया क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है। लाइक explain how this concept can be used in investigation to measure the extent of the bacterial growth। तो आप बोलो भाई greater the turbidity the greater is what, the bacterial growth। खत्म। तो आप एक मार्क के लिए क्या लिखोगे, the greater the turbidity, the greater the turbidity, या cloudiness लिख दो बेशक, the greater the turbidity, the greater is what, the greater is the growth of bacteria, the greater is the growth of bacteria. If turbidity is a measure of growth in bacteria, growth of the population of bacteria, तो जितना ज्यादा turbidity होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर ब्रॉथ कल्चर में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। The student decided to test the antibiotic solution before testing the Manuka honey। तो पहले हम क्या टेस्ट करें, एंटीबायोटिक। दो सॉल्यूशन थे ना, इनको कंपेयर करना है उनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को। एक मनुका हनी था और एक एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन था। पहले हम एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन को टेस्ट करें। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू टेस्ट द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग द मनुका हनी। In addition to normal lab apparatus and materials, the student was provided with the following। अब वो क्या क्या दिया था, a fresh broth culture of the bacterium, a clear antibiotic stock solution। जो आप एंटीबायोटिक सॉल्यूशन यूज करोगे ना उसका स्टॉक सॉल्यूशन आपको दिया है। स्टॉक क्या होता है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है, जिनको आप डाइल्यूट करके वो फर्दर कॉन्सेंट्रेशन पे पे कर सकते हो। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट द एंटीबायोटिक स्टॉक सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन के लिए अब आप डिस्टिल वाटर यूज नहीं करोगे, वो बोल रहा है डाइल्यूशन के लिए आप क्या यूज करोगे, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज करोगे। समझ में आ गया? सो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट द एंटीबायोटिक स्टॉक सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं, आपके पास क्लियर स्टॉक सॉल्यूशन है और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है टू डाइल्यूट दिस स्टॉक सॉल्यूशन। सही है। 15 cm cube flat bottom glass culture tubes with sterile cotton wool bungs, a choice of graduated pipettes to measure volumes accurately। और आपको different जो है वो pipettes दे दिए, like 0.2 दे दिए, 2 दे दिए, 10 दे दिए, 25 दे दिए, ये आपको pipettes दे दिए। like the student prepared dilutions of the antibiotic stock solution and added a volume of each to different culture tubes। तो जो आपने multiple culture tubes ली थी ना, like, तो different dilutions prepare करके उनको different culture tubes में डाल दिया। like added a volume of fresh broth culture of bacterium to each culture tube। पहले एंटीबायोटिक सोल्यूशन डाले, फिर आपने क्या डाल दिया, जो ब्रॉथ कल्चर है वो डाल दिया। इंक्यूबेट द कल्चर ट्यूब्स इन एन इंक्यूबेटर। अब आप ये कितने अरसे के इंक्यूबेट करना चाहोगे, पीछे उसने दिया होता है ना 24 डिग्री सेल्सियस, वो डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, 24 आवर्स, 24 आवर्स के लिए आप इंक्यूबेट कर दोगे। और टेम्परेचर उसने क्या रखा था, 25 डिग्री। आप भी वही टेम्परेचर रख सकते हो, बिकॉज उसने जो पीछे ट्रायल किया था एक, उसमें ये टेम्परेचर और ये ड्यूरेशन यूज की थी ना इंक्यूबेशन की, आप भी वही टेम्परेचर और ड्यूरेशन यूज कर सकते हो। लाइक
So incubate the culture tubes in an incubator. Allow time for bacterial growth to occur, and then checked each culture tube, recorded and analyzed the results, decided on the lowest concentration of antibiotic solution that appeared to kill or inhibit the growth of the bacterium. Outline a control for this part of this investigation. तो आप कंट्रोल क्या यूज़ कर सकते हो कि जो आप एंटीबायोटिक सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो ना, उसकी जगह इंस्टेड आप क्या यूज़ कर लो, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन सिर्फ यूज़ कर लो या डिस्टिल वाटर यूज़ कर लो, लाइक वो क्या बन जाएगा, आपका कंट्रोल बन जाएगा. तो सूटेबल कंट्रोल क्या हो जाएगा, यूज़ व्हाट, यूज़ nutrient solution instead of what, use nutrient solution instead of the antibacterial solution, instead of the antibacterial solution. ये आपका क्या हो जाएगा, suitable control हो जाएगा. Part C. In the next part of the investigation, the student used the stock solution of Manuka honey. For example, बता रहे भाई next part में हमने कर लिया antibacterial solution के साथ ना, अब हम Manuka honey के साथ करेंगे. like. So in the next part of the investigation, the student used the stock solution of Manuka honey. The student remembered that hydrogen peroxide could be present, क्योंकि honey में hydrogen peroxide normally होता है. like. इस वाले हनी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ वो MgO भी होगा ना. मनुका हनी स्पेशल केस में एक MgO सब्सटेंस है which is antibacterial in nature. So in the next part of the investigation, the student used the stock solution of Manuka honey. The student remembered that hydrogen peroxide could be present but could not think of a way to break down the hydrogen peroxide to remove it from the solution. Describe how the student can improve the investigation by removing hydrogen peroxide from the Manuka honey solution and explain why this improvement makes the results more valid. 2 मार्क के लिए आपने कोई plausible suggestion देना है कि भाई कि जो मनुका हनी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, उसको कैसे तोड़ सकें. तो आप क्या करेंगे नहीं, हाँ, सो आप एंजाइम यूज कर सकते हैं. which enzyme, do you know which enzyme breaks down hydrogen peroxide? So you can use peroxidase to break it down. You can use peroxidase, आपने कोर्स में पढ़ा हुआ है. लाइक दिस वन मोर एंजाइम जो लिवर में होता है आपके, लाइक जो तोड़ता है. लाइक आपको याद है वो एंजाइम, सी से आता है उसका नाम, हिंट दे रहा हूँ, सी से आता है, सी से आता है वो एंजाइम, लिवर में प्रेजेंट होता है, which breaks down hydrogen peroxide to water and oxygen. Can you recall? The name of the enzyme starts with the letter C. E. Most of these enzymes end with E, right? So that enzyme is catalase. Have you heard about the enzyme catalase? Right? So you can use catalase, you can use peroxidase. कोई भी एक एंजाइम बता दो, उससे ब्रेक डाउन करेंगे. हम क्यों ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, ताकि हम सिर्फ किसकी, MgO की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दे सकें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या ना करे, रिजल्ट्स में इंटरफेयर ना करे. लाइक तो आप क्या लिखोगे, लाइक यूज कैटलेस टू ब्रेक डाउन, use catalase to break down hydrogen peroxide, this ensures that bacterial killing, that the antibacterial effect that bacterial killing is only due to what, is only due to MgO and Manuka honey, and what, and Manuka honey. ठीक है, तो आप इससे चाहोगे ना, आप चाह रहे हो कि भाई आप सिर्फ MgO का इफेक्ट देखो, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देखो, तो आप चाहोगे और जो बाकी चीजें जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं उनको आप एलिमिनेट करो. इसलिए आप चाहोगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप पहले कैटालिटिकली ब्रेक डाउन कर दो, लाइक ताकि जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हो ना बैक्टीरियल किलिंग का, वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंस हो किसका, MgO के प्रेजेंस का इनसाइड द Manuka. Next point. The student was provided with a stock solution of Manuka honey containing an MgO concentration of 600 micrograms per centimeter cube. This was a clear solution labeled 100% honey. तो ये जो आपके पास stock solution है Manuka honey का, वो आप assume करोगे 100% honey है. सही है. The same apparatus and materials were available. आपके पास जो पीछे आपके पास दिए हुए थे ना, लिस्ट जो दी हुई थी, exactly वही आपके पास लिस्ट अवेलेबल है. Describe how the student could prepare a 10% solution of honey using the stock solution. Construct a table to show how the dilution is made for the 10% solution and the other concentrations that the student could use. अब आपको 2 मार्क का दिया हुआ है, तो सही सी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपने इसमें. आपने 10% तो पहले बनाना है,
और फिर उस 10% को यूज करके आप और डाइल्यूशन भी बना सकते हो लाइक। तो 10% के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 100% जो हनी दिया हुआ है आप उसका 1 cm³ लो और 9 cm³ क्या डाल दो, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डाल दो। डाइल्यूशन के लिए न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यूज करना है लाइक, तो आपके पास क्या बन जाएगा 10 cm³ ऑफ वो आ जाएगा। बट आपके पास ऐसी बात हम चाहेंगे स्टॉक्स जो 10% है वो हम ज्यादा बनाए ताकि फिर उसको फर्दर क्या कर सकें हम, डाइल्यूट। तो लेट्स अज्यूम मुझे टोटल 100 cm³ बनाना है लाइक, तो मैं एग्जामिनर को पहले जो है ना वो मेथड बताऊंगा टू मेक 100 cm³ ऑफ व्हाट, ऑफ 10% सोल्यूशन लाइक। मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए बताया रेशो का 1 और 9 बिकॉज आप नॉर्मली जब एएस में प्रैक्टिकल्स करते थे ना तो आप इस तरह करते थे 1 cm³ ये डाला और फिर 9 cm³ वो डाल दिया, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 1/10 हो जाती थी। यहाँ पे भी 1/10 ही कर रहे हो ना आप, 100% से आप कहाँ जा रहे हो 10% पे लाइक, तो 1/10 के लिए वो 1 और 9 वाला फॉर्मूला आपको पता है। अब आप उसको सिर्फ एक्सटेंड करके 10 और 90 कर दो ताकि आपके पास क्या आ जाए 100 cm³ का पूरा 10% सोल्यूशन आ जाए लाइक। तो आप क्या बताओगे एग्जामिनर को, जो यहाँ स्पेस है ना जो ये दी हुई है यहाँ पे सिर्फ 10% सोल्यूशन बनाना सिखाओगे एग्जामिनर को आप लाइक, और बाकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ दिखाओगे। एक मार्क इसका होगा, एक मार्क इसका होगा, ज्यादा मार्क नहीं है इसके, तो मेक श्योर जितने मार्क्स हो उतना ही टाइम आप इस पे स्पेंड करो लाइक। तो आप क्या बोलोगे लाइक add 90 cm³ of add 90 cm³ of nutrient solution to a beaker containing or containing 10 cm³ of 100% honey, जो मनुका हनी है, जो स्टॉक सोल्यूशन है, to make 100 cm³ of 10% solution of honey. To make 100 cm³ of 10% solution of honey. Do you understand what I've done over here? Like, आपने बस 1/10 करना है ना, आप उसको C1 V1 से निकालना चाहो आप उससे भी निकाल सकते हो यार, बट वो जरूरत नहीं है आपको करने का, आप वैसे भी कर सकते हो लाइक, मतलब कि 1/10 करना है ना आपने यार, तो आप रेशियो में ले लो, जो आप न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हो वो ले लो, उसका रेशियो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दो, आपके पास 10% हनी बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 10% से बाकी डाइल्यूशन बनाएंगे लाइक, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन लिखा है तो हम इसको वॉल्यूम ऑफ 10% सोल्यूशन ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो इसको 10 लेते हैं ताकि 10 से हम फर्दर डाइल्यूशन बना दें। सो वॉल्यूम ऑफ 10% सोल्यूशन, ठीक है। तो पहली जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो 10% है। 10% के लिए और कितना कितना बनाऊंगा मैं सबका, लेट्स से क्योंकि उसने वॉल्यूम स्पेसिफाई नहीं किया लाइक, तो आई कैन मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ हाउ मच 10 cm³, वो आप खुद डिसाइड करोगे आपने टोटल वॉल्यूम इतना बनाना है लाइक। सो यू कैन मेक 10 cm³, 20 cm³, जो भी आपको ग्रेजुएशन आपको सुटेबल आपने बनाना है ना, एक वॉल्यूम बस चूज कर लो और फिर सारे सोल्यूशन उतने ही cm³ क्या बनाओगे। तो लेट्स से मैं टोटल चूज करना है 10 ही कर लें ताकि नंबर आसान हो जाएंगे लाइक। तो हम 10 cm³ बनाते हैं, 10% के लिए मुझे 10 cm³ लेना होगा और 0 न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लेना होगा, बाकी परसेंटेज अब क्या बनाओगे आप। सो यू कैन मेक अदर डाइल्यूशंस, क्योंकि यहाँ उसने स्पेसिफाई नहीं किया आपने सीरियल करना है या सिंपल करना है, तो ऑप्शन आपके पास दोनों का होगा लाइक। मेक श्योर जो आपके पास जो पाइपेट्स दिए हैं ना वो आप यूज कर सको लाइक, जो वॉल्यूम्स के पाइपेट दिए हैं ना वो आप यूज कर सको। वो आपके पास एक 0.2 का, एक 2 का और एक कौन सा वाले 10 का है आपके पास, और एक और 25 का, ये चार दिए हैं 0.2, 2, 10 और। तो मेक श्योर कि अगर आपको वो यूज करना हो आप उनको किसी तरह अप्रोप्रिएटली यूज करो और यहाँ पे अपनी वॉल्यूम्स निकालो लाइक। तो लेट्स से अब मुझे बनाना है, पहले मैं सोच लेता हूँ ना क्या क्या बनाऊंगा। इधर देखो यार, लेट्स से 8 बनाना है, इधर देखो यार, एक मिनट देखो 8 के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 8% के लिए आई नीड टू यूज 8% 8 cm³ ऑफ दिस एंड 2 cm³ ऑफ दिस, और दोनों मैं उन पाइपेट से ले सकता हूँ। वो ग्रेजुएटेड पाइपेट्स है ना लिखा हुआ उसने, तो जो 10 cm³ वाला पाइपेट है उससे 8 cm³ निकाल सकता हूँ और 2 cm³ वाले से 2 cm³ निकाल सकता हूँ, और मेरे पास क्या बन जाएगा 8% सोल्यूशन बन जाएगा। ये बिला वजह ही उसने वॉल्यूम लिखी, किसी वजह से वो वॉल्यूम्स दिए हैं कि आप उन वॉल्यूम्स को अप्रोप्रिएटली ना लाइक अपने ज़हन में रखो, ये ऑपरेटर्स हैं जो आपने यूज करना है लाइक। तो आई यूज व्हाट, आई मेक एन 8% सोल्यूशन, और इस 8% सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा 8 cm³ ऑफ 10% सोल्यूशन ले लूंगा मैं, और मैं क्या ले लूंगा आपके पास 2 cm³ ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ले लूंगा। और ये दोनों ऐसी वॉल्यूम्स हैं जो मैं आराम से उन ग्रेजुएटेड पाइपेट से निकाल सकता हूँ, जो पीछे एग्जाम ने आपको दिए हुए ना, आप आराम से उन ग्रेजुएटेड पाइपेट से ही निकाल सकते हो। 8 वाला भी निकाल सकते हो और 2 वाला भी निकाल सकते हो लाइक। फिर आप यूज कर सकते हो 6 वाला लाइक। 6 के लिए आप क्या करोगे लाइक,
you will use what 6 centimeter cube of this and use 4 centimeter cube. और ये भी आप कर सकते हो, लाइक आपके पास ग्रेजुएट पाइपर्स में है इतनी कैलिब्रेशन कि आप आराम से ये दोनों वॉल्यूम निकाल सको. लाइक फिर आपके पास आप ले सकते हो 4 और 2, मैं ये ले लेता हूँ ना, 2 और ले लेता हूँ लाइक, और 4 और 2 के लिए आप 4 cm क्यूब ये लोगे, 6 cm क्यूब न्यूट्रन सोल्यूशन लोगे, और यहाँ पे 2 cm क्यूब ये लोगे, और 8 cm क्यूब आप जो है वो न्यूट्रन सोल्यूशन ले लोगे. लाइक नाउ ऑल ऑफ दीज वॉल्यूम्स दैट यू हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ये आप आराम से निकाल सकते हो यूजिंग व्हाट, यूजिंग द ग्रेजुएटेड पाइपर्स दैट यू हैव. ये आपके पास अब 5 कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगी. इस पे एक और चीज क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ. एक यहाँ देखो यार, मैं यहाँ पे सीरियल डाइल्यूशन अगर करता तो मैं क्या लेता, 10% से मैं क्या बनाता 1%, 1% से क्या बनाता 0.1, 0.1 से क्या बनाता 0.01. बस मैंने वो इसलिए नहीं किया बिकॉज उसके अंदर ना टेबल के बजाय बेहतर तरीका क्या होता है, क्या वो जो बीकर्स नहीं होते, बीकर्स बने होते हैं और एक से ट्रांसफर करके दूसरे बीकर में जाते हो. याद है आपको एज से आपने ये डायग्राम पढ़ी थी, लाइक एक बीकर होता है, उससे फिर आप दूसरे बीकर में ट्रांसफर करते हो, फिर तीसरे बीकर में ट्रांसफर करते हो. याद है सीरियल डाइल्यूशन के लिए दीज आर द अप्रोप्रिएट डायग्राम्स टू मेक. लाइक जब आप टेबल बनाते हो ना, लाइक नॉर्मली उस टेबल के अंदर आप सिंपल या प्रोपोर्शनल डायरेक्शन शो करते हो, लाइक, और वो नॉर्मली फिक्स गैप के साथ होती है. एंड दिस इज मच मोर सिंपलर फॉर यू टू डू एज वेल. अनलेस एग्जामिनर स्पेसिफाई करे यूज सीरियल डायल्यूशन, तो आपके पास ऑप्शन होता है आप प्रोपोर्शनल या क्या कर लो, सीरियल डायल्यूशन यूज कर लो. अगर वो स्पेसिफाई कर देता है और बोर्ड में अक्सर लिख देता है कि भाई आप सीरियल डायल्यूशन से सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, तब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तब आपको फिर वही यूज करना पड़ता है. आर ऑल ऑफ यू क्लियर ऑन हाउ दिस वर्क्स? लाइक हमने बिल्कुल डिट्टो इसी टाइप का एक और दफा भी ये टेबल क्वेश्चन किया था, जो लास्ट हमने किया था उसमें भी हमने सिमिलर टाइप का टेबल बनाया था. एंड दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन इन योर, वो आपके P5 जो ना, ये बहुत कॉमनली अब आना शुरू हो गया कि आपसे स्टॉक सोल्यूशन देके वो फर्दर डाइल्यूशन प्रिपेयर कराते हैं और टेबल बना के आपसे इस तरह एक्सरसाइज करवाते हैं. तो टेबल का फॉर्मेट याद कर लो. कॉन्सेंट्रेशन आप क्या नाम है, एक कॉलम कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिजर्व कर लोगे, और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट जरूर देना, परसेंटेज इज द यूनिट फॉर व्हाट, फॉर कॉन्सेंट्रेशन. लाइक फिर आप यहाँ लिखोगे एक वॉल्यूम ऑफ जो भी आप स्टॉक सोल्यूशन, या जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक सोल्यूशन पे लिखा हुआ था, मैं चेंज करके उसको क्या कर दिया 10% सोल्यूशन कर दिया. लाइक जानबूझ के किया, बिकॉज 100% से 8642 बनाना बहुत मुश्किल होगा, लाइक बहुत ज्यादा डाइल्यूशन चाहिए होगा आपको. लाइक तो आप 10% से वो बना दो ना, लाइक आपने ऑलरेडी 10% बनाया है, तो एग्जामिनर पागल थोड़ी है कि आपसे 10% बनवाएगा. वो बनवाएगा इसलिए कि आप उसको फिर फर्दर यूज करके, और एक और कभी कभी आप होते हो फुल टाइम बगैर नींद के, तो आपने ये भी 10 cm बनाया होता है 10%. अब वो 10% 10 cm आपने बनाया है, अब चेक करो वो यहाँ पे आप लिखोगे 10 cm, तो खत्म हो गया है वो भाई, अभी बाकी कहाँ डालोगे आप. इसलिए मैंने टोटल वॉल्यूम यहाँ पे क्या बनाई है 100 cm3, ताकि इसमें से 10 जो है वो एक मैं कल्चर ट्यूब में डाल दूंगा, 8 दूसरे कल्चर ट्यूब में, 6 में, 4 में, 2 में, ये टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 100 से क्या होगा लेस होगा, ताकि मैं यूज कर सकूँ. डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रिपेयरिंग मोर वॉल्यूम ऑफ 10% इन द फर्स्ट गो, ताकि आप उन सॉल्यूशंस को फिर यूज कर सको ना टू मेक फर्दर डाइल्यूशन. अगर आप ये भी 10 cm3 इस तरह बनाते टोटल, तो फिर फर्दर डाइल्यूशन कैसे कर पाते, आप कर ही नहीं पाते फर्दर डाइल्यूशन यूजिंग द 10% सॉल्यूशन. डू यू गेट दिस? समझ में? आप इमेजिन करो आप खुद कर रहे होते, तो वहां जब कर रहे होते और 10% आप सिर्फ 10 cm3 बनाते शुरू में, तो वो आप पे आगे यूज ही नहीं कर पाते. लाइक आपको समझ में आ रहा है, लाइक यहाँ आप वो यूज कर पा रहे हो, लाइक व्हाई, बिकॉज यू प्रिपेयर्ड अ बल्क वॉल्यूम ऑफ व्हाट, और 10% सोल्यूशन, और फिर उससे आपने फर्दर डाइल्यूशन अपनी तैयार करनी है. लाइक ठीक है, तो ये आपके पास आगे भाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ व्हाट, ऑफ द क्या नाम है हनी सोल्यूशन जो आपने प्रोड्यूस किया था फ्रॉम द 100% हनी जो आपको प्रोवाइड किया गया था. अब नेक्स्ट पे आ जाओ. State the independent variable and the dependent variable for the part of the investigation involving Manuka honey solution. Independent क्या है पहले ये बताओ. Independent variable क्या है? The concentration of Manuka honey. तो आपके पास independent variable क्या हो जाएगा? Concentration of what? Of Manuka honey solution. और dependent variable क्या होगा? Dependent variable क्या होगा? क्या होगा जब ये reaction होगा तो what will be the ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैसे देखेंगे? टर्बिडिटी. लाइक तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी व्हाट, विल बी क्लाउडिनेस या टर्बिडिटी ऑफ द ट्यूब्स. ठीक है. पार्ट एफ, प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट वुड एक्सपेक्ट व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ मनुका हनी ऑन द बैक्टीरियम एंड एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड दिस प्रेडिक्शन. सिंपल है भाई, हम प्रेडिक्ट ये करेंगे जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन मनुका हनी की होगी उतना सोल्यूशन लेस टर्बिड हो जाएगा. लाइक और क्यों हम बोल रहे हैं, बिकॉज जो है वो मनुका हनी में जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का होगा तो वो बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस टर्बिड या क्लियर हो जाएगा. लाइक तो आप क्या लिखोगे, लाइक द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रेटर
the percentage concentration, ये null hypothesis नहीं है, ये पूछा predict क्या करोगे आप, तो ये prediction होगी ना आपकी. The greater the percentage concentration of Manuka honey solution, the more clear is the solution. The more clear is what is the solution. The more clear is the solution, because MgO in Manuka honey kills what? Kills the bacteria. Kills the bacteria. तो जितनी ज़्यादा concentration होगी, जाहिर सी बात है उतना आप expect करोगे ज़्यादा kill करे और उतना solution आपका क्या है, clear है. Next part. चलो भाई, और ये सिर्फ 5 मार्क्स है. स्पेस उतनी होती है, 5 का हो, 7 का हो, 8 का हो, स्पेस बॉयज फिक्स देते हैं आपको. Describe how the student could determine the lowest concentration of Manuka honey solution that would kill or inhibit the growth of bacteria. और उसने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं. Do not repeat any detail given in part D of how to prepare the different concentrations of Manuka honey solution, and do not give details of using aseptic techniques, यानी techniques to prevent contamination. मतलब कि वो आपने जैसे cotton wool bung वगैरह यूज किया था ना, वो सब कोई डिटेल नहीं आपने देनी. Your method should be set out in a logical way and be detailed enough to let another person follow it. So if you're smart, you know that you just need to write 3 valid points. बाकी दो तो आपने वैसे ही रटे हुए होते हैं जो आपने लिखने हैं, लाइक. और वो किस पे होते हैं, कौन से होते हैं? दो, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी. वो आपको पता है ऑलरेडी. लाइक 3 वैलिड पॉइंट आपने यहाँ लिखने हैं फॉर द प्रोसीजरल डिटेल. और वो आप क्या दे सकते हो कि यहाँ पे आप जो है वो वॉल्यूम ऑफ जो ब्रॉथ कल्चर यूज करो सारे ट्यूब्स में वो सेम हो. जो वॉल्यूम ऑफ मनुका हनी, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, जो वॉल्यूम ऑफ मनुका हनी सोल्यूशन यूज कर रहे हो वो सब में सेम हो. आप एग्जामिनर को ये बता सकते हो लाइक कि डालने के बाद आप प्रॉपर्ली इनको क्या करोगे, मिक्स करोगे लाइक, और फिर इनको इंक्यूबेट कर दोगे. वो दे देना लाइक टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस और टाइम दे देना फॉर हाउ मच, 24 आवर्स. ये आप स्टैंडर्डाइज करोगे ना, कुछ वेरिएबल स्टैंडर्डाइज करोगे लाइक. और फिर आप एग्जाम में बताओगे कि आफ्टर द टाइम हैज elapsed आप फिर क्या करोगे, क्लाउडीनेस मेजर करोगे यूजिंग व्हाट, क्लाउडनेस यूजिंग अ कलरीमीटर. लाइक सिंपल आप ये चीजें लिख दो लाइक. और ये जो मैंने बताया ना, ये एक्चुअली 4-5 मार्क बन गए हैं. मैं सेफ्टी लाइबिलिटी ना भी लिखूं, ये बन गए हैं 4-5 मार्क लाइक. बट आपको ये अपने ध्यान में एक प्रैक्टिस रखो कि एंड में आप 1 मार्क और वो रिलायबिलिटी और 1 मार्क सेफ्टी के लिए जरूर रिजर्व करोगे लाइक. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यूज सेम वॉल्यूम ऑफ वर्ड, use the same volume of broth culture, use the same volume of broth culture in all culture tubes, use the same volume of what, of Manuka honey solution, use the same volume of Manuka honey solution in all culture tubes, ensure that the broth culture and honey solution are properly mixed together, और फिर आप एग्जाम में क्या बताओगे, इंक्यूबेट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स. ये उसने शुरू में जब ट्रायल किया था उसमें ही किया था ना, आप भी बस वही भाषण रिपीट करो भाई. इंक्यूबेट at 25 degrees Celsius for 24 hours and measure the turbidity using a colorimeter. Using a colorimeter like. और इसमें आपने जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है ना, डिटरमिन आप लिख सकते हो, डिटरमिन द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन एट विच द सोल्यूशन इज क्लियर. वो आपको ऑब्जेक्टिव ये था ना कि आप वो निकालो लाइक. तो डिटरमिन द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन at which
at which the solution is clear. At which the solution is clear. अब आप जो है वो 2 मार्क्स रिजर्व कर लो जो आपने लिखने हैं। वैसे आपको मिल गए आपके 5 मार्क्स, बट लाइक सेफ्टी और रिलायबिलिटी क्योंकि आपने वैसे ही याद किए होते तो आप एक एक मार्क उसका हमेशा लिख के आगे करो इनमें। तो रिपीट readings at each concentration of Manuka honey solution and determine the mean and determine the mean। जाहिर सी बात है मीन किस चीज़ का हम कैलकुलेट करेंगे, जो टर्बिडिटी आ रही होगी ना जो आप क्लरीमीटर से मेजर कर रहे हो, लाइक वो हर कॉन्सेंट्रेशन में 3 दफ़ा मेजर करो और उससे क्या निकालो, मीन टर्बिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, ये आप कर लोगे, ये आपका रिलायबिलिटी हो जाएगा। प्रिकॉशन जब देते हैं तो कौन सी 3 चीज़ें लिखनी चाहिए स्टेटमेंट में? सो रिस्क, जो सॉरी हैजर्ड, रिस्क और क्या प्रिकॉशन, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दो भाई कि जो आप वो मनुका हनी सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो सकता है उससे आप एलर्जी को और उसको एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, ग्लव्स से कर लोगे। सो वेयर ग्लव्स टू अवॉइड allergic reaction to manuka honey। आप उसके रेफरेंस से भी लिख सकते थे, जो आप वो ब्रॉथ कल्चर यूज करो ना इसमें बैक्टीरिया है, आपको उसके रेफरेंस से लिखना, आप उसके रेफरेंस से लिख लो। लाइक इधर वे कोई एक प्लॉजिबल, जब भी लिखो ना स्टेटमेंट के अंदर तीनों चीजें नजर आनी चाहिए। यहाँ पे मनुका हनी आपका रिस्क है, लाइक जो हैजर्ड है, जो रिस्क है वो ये एलर्जिक रिएक्शन है, लाइक, और जो प्रिकॉशन आप ले रहे हो वो क्या है यहाँ पे, जो ग्लव्स आप वेयर करो, लाइक। तो ये 3 स्टेटमेंट मैं आपको पहले ही बताया था, जब भी आप सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हो स्टेटमेंट के अंदर ये तीनों चीजें नजर आनी चाहिए। लाइक मेंशन द हैजर्ड दैट यू हैव, the risk associated with that hazard and what, and the precaution that you'll be taking। like तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें सॉल्यूशंस तो कोई ना कोई यूज हो रहे होते हैं ना, लाइक तो इरिटेंट और एलर्जिक, वो एलर्जन, ये तो वैसे ही याद कर लो यार, ये कहीं ना हर यूजुअली सारे ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज अप्लाई कर जाती हैं। लाइक नेक्स्ट पार्ट, MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, is an example of antibiotic resistance in bacteria। तो इतना बड़ा नाम है, मतलब कि बोलना चाहिए स्टैफ ऑरियस, जो कि इस ड्रग से रेजिस्टेंट है। ठीक है, सो मर्सा इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। देयर इज एविडेंस दैट मेडिकल ग्रेड मनुका हनी is effective in treating wounds infected with MRSA। This honey has been sterilized by gamma irradiation and filtered to remove contaminants। तो आपको बताता है मेडिकल ग्रेड मनुका हनी होता क्या है। मेडिकल ग्रेड मनुका हनी को बेसिकली आप स्टेरिलाइज करते हो यूजिंग गामा रेडिएशन, और आप कंटामिनेंट्स इसमें से रिमूव कर देते हो। लाइक हनी में बहुत सारी और चीज़ें होती है ना, आप उनको रिमूव कर देते हो और उसकी सिर्फ जो एंटीसेप्टिक वैल्यू होती है उससे मेडिकल ग्रेड आप हनी बना लेते हो। अ स्टडी वाज कैरिड आउट टू सी इफ अनदर टाइप ऑफ हनी, जर्मेनिया हनी, is as effective as Manuka honey in killing bacteria removed from wounds of 50 people with MRSA। 5 different concentrations of each type of honey were compared. The concentrations were numbered 1 to 5, with 1 being the highest concentration and 5 the lowest concentration. At the concentrations where there was no visible growth in a broth culture of Staph aureus, the researchers transferred samples onto nutrient agar plates containing no antibacterial substance। Incubation of these plates confirmed that there was no bacterial growth। Just to see कि भाई बैक्टीरिया कम्प्लीटली मर गए हैं नहीं, आप जो है वो रिजल्ट के बाद ना उसका सैंपल लेके एगर पे, एगर है किस पे डाला आपने, नहीं या एगर पे डाला था, किस पे डाला था, न्यूट्रिएंट एगर प्लेट्स पे डाला था आपने, चेक करने के लिए बैक्टीरिया सारे खत्म हो गए हैं। क्योंकि अगर वो नहीं खत्म होंगे ना तो वो एगर में फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे और आपकी पॉपुलेशन एगर में बैक्टीरिया की ग्रो कर जाएगी। लाइक द रिजल्ट्स वर एनालाइज्ड यूजिंग द chi-square test। Table 1.1 shows the results of the study and the statistical analysis using the chi-square। अब आप चेक करो उससे दिया हुआ क्या मिलेगा। All of you on the board here। Concentration of honey, M is for Manuka and G is for Germania। और देखो उसने numbers लिखे हैं 1 2 3 4 5, और ऊपर उसने बताया हुआ है like 5 different concentrations of each type of honey were compared। The concentrations were numbered 1 to 5 with 1 being the highest and 5 being what, the lowest। like तो यहाँ पे जो M1 और G1 है ना, ये आपके पास highest concentration of Manuka और Germania है, like, और M5 और G5 है, ये क्या है, lowest concentration। अब चेक करो एक मिनट, पहले ना टेबल को पढ़ना सीखो, लाइक टेबल में चेक करो क्या नजर आ रहा है।
नंबर ऑफ कल्चर्स विद बैक्टीरियल ग्रोथ, आप देखो जब हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन यूज किए तो नंबर ऑफ कल्चर्स विद बैक्टीरियल ग्रोथ आपने 50 यूज किए थे टोटल हर कॉन्सेंट्रेशन पे, लाई हर हनी के लिए। तो देखो 2 + 48 50 नजर आ रहा है, 9 + 41 50 नजर आ रहा है। इस 50 में से दो ऐसे थे जब आपने मनुका नहीं यूज किया तो दो ऐसे थे जिनमें बैक्टीरिया पूरे नहीं मरे और ग्रो हो गए कल्चर के प्लेट के अंदर, एगर प्लेट के अंदर, और बाकी 48 में कोई भी ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है। और जर्मेनिया में इंस्टेड 9 ऐसे थे जिनमें कंप्लीटली नहीं मरे और 41 ऐसे थे जिनमें कंप्लीटली मर गए। तो ज्यादा बेहतर कौन सा है इस कॉन्सेंट्रेशन में, जर्मेनिया या मनुका? मनुका इज बेटर, आपको नजर आ रहा है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में जब आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 से लो की और 2 कॉन्सेंट्रेशन पे आप आ गए, लाइक तो अब आप देखो कि जो आपके पास मनुका हनी जब आपने यूज किया तो सिर्फ 5 ऐसे एगर प्लेट्स थे जिनमें बैक्टीरिया बच गए थे और ग्रो करना शुरू कर, 45 में मर गए थे। यहाँ चेक करो 21 में ग्रोथ नजर आई, यानी अच्छे खासों में अभी भी बैक्टीरिया बच गए थे इस कॉन्सेंट्रेशन पे, और 29 में वो क्या हुए, मरे। तो आप देख लो डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस और इंक्रीज हो गया। लाइक मनुका हनी इज नाउ व्हाट बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट, आप बोलते हो मनुका हनी इज वे बेटर देन व्हाट, देन क्या नाम है, जर्मेनिया इन टैकलिंग द मरसा। फिर आपके बाद थर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो और भी लो कॉन्सेंट्रेशन है उसके नंबर्स दिए हुए हैं और काइस्क्वायर वैल्यू सब पे दिए हुए हैं, फिर फोर्थ पे दिए हुए हैं, फिफ्थ पे दिए हुए हैं। फिफ्थ सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन थी, उसमें देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। लाइक फिफ्थ के अंदर मेजॉरिटी वाले में मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया मरे ही नहीं भाई, आपको नजर आ रहा है। 50 जो आपने यहाँ पे यूज किए थे सैंपल और यहाँ पे 47 में यहाँ ग्रोथ नजर आई, 49 में यहाँ ग्रोथ नजर आई। तो इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन है, मारी नहीं बैक्टीरिया को। सिर्फ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 क्या नाम है आपके पास जो सैंपल टूथ थी उसमें बैक्टीरिया क्या नाम है कंप्लीटली मरे, लाइक बाकी किसी में मरे ही नहीं, लाइक ज्यादातर में मरे ही नहीं बिकॉज ये लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है काइस्क्वायर वैल्यू ये और नो वैल्यू लिखी हुई है। अभी जो येस और नो लिखा हुआ है ना, ये सी लिखा हुआ है कि difference in the results between Manuka and Germania are significantly different or not, समझ में आ गया। लाइक जैसे यहाँ पे significantly different है और yes वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिए, आप खुद ये लिखोगे, अभी आगे जाके बताता हूँ आपको। और यहाँ लिख दिया भाई कि at this low concentration there is no significant difference in what in the क्या नाम है effect of Germania versus Manuka honey। लाइक ये आपने बेसिकली खुद डिड्यूस करना है। लाइक देखो P5 के लिए ना बड़ा आपको स्टेबल सुकून वाला माइंड चाहिए, नींद जिसकी पूरी हुई हो, ये वरना इतनी आसान इन्फॉर्मेशन है ट्विस्ट करती रहती है दिमाग में। लाइक आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी नहीं समझ में आती आपको। लाइक तो आप आराम से प्लीज, मैं इसलिए बाबा बोलता हूँ लाइक P5 में अपना नींद पूरी करके जाना। लाइक समझ में आ गई, लाइक रश नहीं करना, मैं ये पेपर कर लूँ, कोई फायदा नहीं होना। लाइक 9 बजे सो जाना, लाइक 12 घंटे सो जाना इस पेपर से। अच्छा भाई पहले वो आपसे पूछ रहे हैं स्टेट द नल हाइपोथेसिस फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी क्या नाम है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ व्हाट, of Manuka and Germania honey। Like so there is no significant difference, no significant difference। उसने ऊपर एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखी है, killing bacteria। so no significant difference in what, in the effect of Manuka and Germania honey in what, in killing bacteria। क्योंकि उसने ऊपर लिखा है ना कि हम ये इफेक्ट दिखना चाह रहे हैं कि वो बैक्टीरिया को मारते हैं नहीं, लाइक तो आप भी उसी फॉर्म में लिखो तो ये आपका हो जाएगा। तो आप लाइक यार फुल टाइम चार्ज दो आपका ब्रेन। Part 2 Table 1.2 shows some critical values for chi-square at different probabilities। अब आपके पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, हमें बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चाहिए होगा, दो ही तो हैं जो कंपेयर करते हैं यार, एक मनुका एक जर्मनी है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, लाइक 1 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस पार्ट था हाइपोथेसिस, लाइक ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है वो 1 और 2 सिर्फ दिया हुआ है बिकॉज आप मनुका और जर्मनिया को कंपेयर करो ना, तो दो ही कैटेगरीज हैं। लाइक तो 2 - 1 करोगे क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे जो क्रिटिकल वैल्यू है वो चेक करो क्या दी हुई है, 3.841। दैट्स द क्रिटिकल वैल्यू 3.841। लाइक अब बोल रहा है यूज टेबल 1.2 टू डिसाइड वेदर द chi-square वैल्यूज फॉर concentrations 2, 3 and 4 in table 1.1 are significant or not significant। Write your decision in the final column of table 1.1। Write yes if the value is significant and no if the value is not significant। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू देखनी है और देखनी है कि ये जो वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है या नहीं। तो क्रिटिकल वैल्यू इज 3.841। ये तीनों वैल्यूज में से ये वाली जो दो वैल्यूज हैं वो बेसिकली क्या है, लो है, जो आपको नजर आ रही है। लाइक ये दो वैल्यूज हैं वो आपके पास लो हैं।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे भाई कि ये वाला सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, ये वाला भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, और जो 3.052 आ रहा है वो लेस वैल्यू है, so that is what not significant. आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक नज़ार लाइक बिकॉज ये वाली जो वैल्यू है दिस इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ना, और ये भी देखो दिस इज आल्सो लेस, यहाँ पे उसने खुद ही लिख दिया है नो लाइक। तो वो पूछता है लास्ट पार्ट में जिसमें आप चैंपियन होते हो यूजुअली, this study compared the effectiveness of the two honey varieties in treating wounds infected with MRSA. State the conclusions that can be made from the results and the statistical analysis of the study. तो आप आराम से बोल सकते हो Manuka honey is what more effective than Germania because the results are significantly different in what in concentrations 1, 2 and 3. बस इतना सा आप लिखोगे आपको आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा फारसी जाननी तो आप ये भी बोल सकते हो that at lower concentrations 4 and 5 results are not statistically significant. आप ये भी लिख सकते हो, like if you want to even that will be a marking point, like क्योंकि lower concentration में इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, से जो हाई वाली कॉन्सेंट्रेशन है 1, 2 and 3 उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, लाइक तो आप क्या लिखोगे, मैं एक ही रेफरेंस से लिखूंगा ना आंसर, लाइक तो मैं अपनी जाहिर सी बात है वो वाले पॉइंट्स उठाऊंगा जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। मैं बोलूँगा जर्मेनिया Manuka honey is more effective, honey is more effective than Germania because the difference in results is significant at concentrations 1, 2 and 3। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1।